Hello guys, myself Dr. Satyavrat Mishra and welcome back to my channel Drug of Choice Simplifying the Medical Education. So it's been long, I think more than a year that I haven't uploaded any of the videos in my channel. So from now I'm planning to upload some small videos like maximum for 20 minutes. So I will be uploading the topics that are way more important for NEET PG, for Central Institute exams and also for the FMG students. So mainly focusing for the FMG guys only. So all my videos will be in English. So I will be combining English along with Hindi so that we can understand the concept well and I can reach more amount of audience from India and for those guys who are studying abroad also. Okay, without wasting much of time, let's start. So today we will be covering the topic known as basics. From the basic, that is today I will be starting mainly the cardiology. So in cardiology today we will be starting the basic physiology that we need to know, or that is a must know to understanding the core cardiology from the medicine. Okay, let's start from cardiology physiology basics. So okay, so there are few terminology that you should know before starting this topic. So these are few terminology and these may be asked in a like one-liner questions, but earlier these terminologies are frequently asked in the exams, but now these are not repeated, but still you need to know. So the first one is chronotropism. Okay, chronotropy or chronotropism. So how to remember what is the meaning of chronotropism? So chronotropism, here you can see the letter H and R. So here H and R means heart rate. So chronotropism states, or chronotropism means the heart rate. Okay. Second, inotropism. So here inotropism actually means the cardiac contractility. Okay, what do you mean by cardiac contractility? So mainly whenever we are talking about contraction of the heart, so mainly we are referring to ventricular contraction. So here inotropism means cardiac, or in other words, in the gross form you can say that ventricular contractility or cardiac contraction or myocardial contractility. Okay, then dromotropism. So in dromotropism it starts from the letter D. So here it relates to the cardiac conduction. Okay, cardiac conduction. Then comes the bathymetropy. What do you mean by the term bathymetropy? Bathymetropy means cardiac excitability. And the last one is lusiotropism. So here you can just guess from my accent of speaking itself, it means cardiac relaxation. So lusiotropism means cardiac relaxation. So okay, let's revise. अब देखो, chronotropism में HR आता है तो इट सिंबलाइजेस हार्ट रेट. ठीक है, तो chronotropism मतलब हार्ट रेट. तब आइनोट्रोपिज्म, जब आइनोट्रोपिज्म कोई बोल रहा है, इट मींस कार्डियक कंडक्शन मतलब मेनली हम बात कर रहे हैं वेंट्रिकल्स की. सो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन बोल लो या फिर तुम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोल लो, बोथ मीन्स द सेम. नाउ थर्ड वन इज ड्रोमोट्रोपिज्म. तो ड्रोमोट्रोपिज्म मतलब कार्डियक कंडक्शन. अब देखो, कार्डियक कंडक्शन मतलब अगर हम कंडक्टिंग सिस्टम की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम इज एसए नोड. सो हम इधर बात कर रहे हैं एसए नोड के बारे में. थर्ड वन इज बाथमोट्रोपिज्म, दैट इज कार्डियक एक्साइटेबिलिटी, एंड लास्ट वन इज कार्डियक रिलैक्सेशन, दैट इज लूसिट्रोपिज्म. तो इन 5 वर्ड्स का टर्मिनोलॉजी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. द सेकंड वन इज पेसमेकर. अब देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिनको मतलब जैसे कोई बोले आपको पेसमेकर वर्ड, व्हेनेवर यू कम अक्रॉस दिस वर्ड नोन एज पेसमेकर, द फर्स्ट वर्ड दैट शुड कम टू योर माइंड एट ए ग्लांस इज ऑटोमेटिसिटी. ओके, तो पेसमेकर कोई भी आपको बोलता है तो सबसे पहले आपको आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, दैट इज ऑटोमेटिसिटी. अब ऑटोमेटिसिटी क्या होता है? ऑटोमेटिसिटी मतलब विदाउट एनी ऑर्डर, विदाउट एनी स्टिमुलस, अगर कोई मतलब निस्वार्थ रूप से काम कर रहा है, इसको कहता है ऑटोमेटिसिटी. सो मतलब इसी को अगर हम इंग्लिश रूपांतरण करें इसका, तो ऑटोमेटिसिटी मतलब एबिलिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिकल impulse without any external stimulus. ठीक है, तो इसका मतलब सब लोग समझ गए. पेसमेकर जब भी कोई वर्ड बोले तो आज से हरदम याद रखना, अपनी जहन में भर लो ऑटोमेटिसिटी. ऑटोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी स्टिमुलस,
विदाउट एनी स्टिमुलस, निस्वार्थ रूप से एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना, ठीक है। अब दूसरी बात, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट पेस मेकर, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट सेल दैट एक्ट्स एज अ पेस मेकर इन द हार्ट, दैट इज एसए नोड। ये हम सबको पता है, एसए नोड, ओके, साइनो एट्रियल नोड। तब जो ये एसए नोड होता है, इसको हम पेस मेकर क्यों कहते हैं? पेस मेकर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है, जो मतलब ये हार्ट बीट में जो हेल्प करता है, जो ये बीट्स जनरेट करता है, दैट इज नियर अबाउट 100 पर मिनट। लेकिन हमारा नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होता है? 72 पर मिनट। अब अगर ये जो बीट्स जनरेट कर रहा है या फिर जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है जिसके वजह से हार्ट बीट कर रहा है, अगर वो 100 पर मिनट है तो हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट 72 पर मिनट कैसे हुआ? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 100 से 72, 100 से 72 उसको मतलब डाउन रेगुलेट किसने किया, एडजस्टमेंट किसने किया? हियर कम्स द मेन रोल ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, दैट इज वेगल इनर्वेशन टू द हार्ट। वेगस नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, तो वेगस नर्व का जो इनर्वेशन होता है हार्ट में, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो इनर्वेशन होता है हार्ट में, यहाँ पर उसका मेन रोल आता है। सो रेस्टिंग वेगल टोन, ये चीज याद रखना है, रेस्टिंग वेगल टोन, रेस्टिंग वेगल टोन इज द मेन फैक्टर that maintains our resting heart rate, that is 72 beat per minute। ओके, अब यहाँ पर आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जैसे जो मतलब एक जनरल ग्रॉसली याद रख लो कि whenever we need sympathy, या फिर सिंपैथी कहाँ से आती है? दिल से। सो सिंपैथी comes from the heart। सो सिंपैथेटिक सिस्टम इन आवर बॉडी ऑलवेज स्टिमुलेट्स द हार्ट, मतलब वो सब कुछ हार्ट का बढ़ाएगा। मतलब जो ऊपर हमने 5 फंक्शन पढ़े, क्रोनोट्रोपिज्म, आइनोट्रोपिज्म, ड्रोमोट्रोपिज्म, पाथमोट्रोपिज्म या फिर लूसियोट्रोपिज्म, मतलब इन सब चीजों को बढ़ाएगा एक्सेप्ट लूसियोट्रोपिज्म बिकॉज दैट इज अ रिलैक्सेशन, ओके। सो ये सारी चीजों को बढ़ाएगा। लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो उसका उल्टा काम करेगा, वो हार्ट को मतलब हार्ट के सारे फंक्शंस को कम करेगा। तो इसमें 2 चीज समझ में आ गया। सिंपैथेटिक सिस्टम, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो और जो सिंपैथी कहाँ से आती है? दिल से आती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हरदम हार्ट को स्टिमुलेट करेगा और बाकी सबको कम करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हरदम क्या करेगा? हार्ट को कम करेगा, बाकी सबको बढ़ाएगा। ये जनरल चीज है, इसको याद कर लो। अब क्या होगा? अब देखो, जो पेसमेकर हमने जो टर्म लिया तो मैंने वो क्या समझाया? पेसमेकर इज ऑलवेज रिलेटेड टू ऑटोमेटिसिटी। ओके, पेस सिर्फ हम मतलब प्रीडोमिनेंट पेसमेकर इज एसए नोड, ओके, एग्री। बट सिर्फ एसए नोड ही पेसमेकर नहीं होता है। हमको क्या याद रखना है कि सिर्फ एसए नोड ही पेसमेकर नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी दूसरे सेल्स भी हार्ट में है जो कि पेसमेकर की तरह काम करते हैं। जैसे कि बहुत दूसरे सेल्स भी है जो कि पेसमेकर की तरह काम करते हैं। तो वह जैसे हो गया आपका एवी नोड, एवी नोड भी है, वो भी पेसमेकर की तरह काम कर सकता है। हिस्परकिंजे सिस्टम, हिस्परकिंजे सिस्टम ये भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं जो कि कोरोनरी साइनस के आसपास होते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं जो कि कोरोनरी साइनस के आसपास होते हैं, वो भी एसए नोड की तरह काम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं एट्रियल सेल्स नियर द ऑस्टियम ऑफ कोरोनरी साइनस। एट्रियल सेल्स नियर द ऑस्टियम ऑफ कोरोनरी साइनस, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ये भी पेसमेकर की तरह काम करते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंट पेसमेकर क्या है? एसए नोड, ठीक है। क्योंकि इन सब का जो क्या कहते हैं फायरिंग फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है, इसके वजह से ये डोमिनेंट पेसमेकर नहीं है, एसए नोड ही हमारा डोमिनेंट पेसमेकर है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जिसको जानना बहुत जरूरी है, इससे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, दैट इज एसए नोडल एक्शन पोटेंशियल ग्राफ। एसए नोडल एक्शन पोटेंशियल ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दिस ग्राफ प्रॉपरली with all the phases and all the important ions that are required for each and every phase of the action potential. First thing, second thing क्या है? इस ग्राफ को रट लो मतलब पिक्चरल मेमोरी ले लो, ठीक है। पिक्चरल मेमोरी ले लो कि एसए नोड का ग्राफ ऐसा दिखता है क्योंकि वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ अलग दिखता है, एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा दिखता है। अब देखो, अब इसमें कुछ चीजें मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि इसका जो मतलब जो इसका एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ भी स्पेशल है, क्योंकि एसए नोड खुद भी स्पेशल है, तो एसए नोड एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ भी स्पेशल है। तो इसमें कौन कितने फेज होते हैं? फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, ठीक है। अब देखो, जो फेज 1 है ना, फेज 1 क्या होता है कि जो हाइपर पोलराइजेशन के मतलब थोड़ा सा हाइपर पोलराइजेशन होता है और उसके बाद डिपोलराइजेशन की ओर जाता है। तो जो फेज 1 और फेज 2 है, ठीक है, फेज 1 और फेज 2 जो है इसको हम कहते हैं पेसमेकर पोटेंशियल। फेज 1 और फेज 2 जो है इसको हम कहते हैं पेसमेकर पोटेंशियल। मतलब क्या है इसका? फेज 1 और फेज 2 का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन टोटल उसमें जो माइक्रोफोल्ड्स जनरेट होते हैं, इन टोटल वो पहुंचते हैं कहां तक? थ्रेशोल्ड तक।
जब वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है वहीं से फिर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद रिपोलराइजेशन होता है और फिर वो नीचे आता है, रिपोलराइजेशन होते तो फिर वो हाइपरपोलराइजेशन में जाता है और फिर वहां से थ्रेशोल्ड तक पहुंचता है, फिर डीपोलराइजेशन होता है। ये कंटिन्यूसली चलता है। तो हमको अब ये जानना है कि ईच एंड एवरी स्टेप में, ईच एंड एवरी प्रोसेस में कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है। तो कितने फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 3 इज नोन एज दिस फेज 3 इज नोन एज डीपोलराइजेशन। ठीक है, पहले इजी वाले बता देता हूँ, फिर जो फैक्चुअल और थोड़ा सा मतलब आपको रटने जैसा लग सकता है वो बता दूंगा। पोलराइजेशन, ओके। फेज 3 इज डीपोलराइजेशन, फेज 4 इज डीपोलराइजेशन। अब देखो जो फेज 3 है डीपोलराइजेशन, देखो ज्यादातर डीपोलराइजेशन बोलते ही मतलब एक ग्रॉस कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्या आता है, सोडियम सोडियम सोडियम, है ना। लेकिन ऐसे नोड के केस पे ये अलग है। क्या अलग है इसमें, जैसे ही कोई आपको बोले ऐसे नोड के डीपोलराइजेशन के बारे में, तो यहां पर द मेन इंपॉर्टेंट आयन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन फेज इन द ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेशन इज कैल्शियम। वो भी कौन सा कैल्शियम, एल टाइप कैल्शियम चैनल। एल मतलब लॉन्ग एक्टिंग कैल्शियम चैनल्स, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, और उसके बाद रिपोलराइजेशन सेम वही वाला है, पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, पोटेशियम चैनल्स, आउटवर्ड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, ये दोनों चीजें इजी है, याद आ गया। ठीक है, एक तो एल टाइप कैल्शियम चैनल्स दैट इज लॉन्ग एक्टिंग कैल्शियम चैनल्स, और दूसरी बात आ जाओ आउटवर्ड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल रिपोलराइजेशन में यूज होता है। अब आ जाओ फेज 1 में। देखो जो फेज 1 है ना, फेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेज 1 किसके वजह से होता है, जो फेज 1 है वो बहुत सारे आयन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो जो मतलब एक्चुअली फेज 1 का जो हाइपरपोलराइजेशन है इसको हम कहते हैं फनी करंट। ठीक है, फनी करंट। ठीक है, अभी जो फनी करंट होता है एक्चुअली प्रीडोमिनेंटली फनी करंट इज ड्यू टू सोडियम चैनल्स। एक्चुअली प्रीडोमिनेंटली फनी करंट्स आर ड्यू टू सोडियम चैनल दैट इज HCN चैनल, दीज आर HCN चैनल्स। इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा आपको। ठीक है, तो फनी करंट्स इज ड्यू टू सोडियम चैनल्स, लेकिन सिर्फ सोडियम चैनल की वजह से नहीं होता, सिर्फ सोडियम चैनल की वजह से नहीं होता। यहाँ पर 2-3 चीजें। ठीक है, ओके। फेज 2 किसके वजह से होता है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ फेज 2 किसके वजह से होता है। फेज 2 इज ड्यू टू टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, टी टाइप से क्या समझते हो, ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, अब देखो 1 के बाद 2 आता है। ठीक है, 2 का एक्चुअल काम क्या होता है, 2 का एक्चुअल काम होता है जो टी टाइप जो ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम चैनल्स है उसका एक्चुअल काम होता है कि हाइपरपोलराइजेशन के बाद उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या फिर उस पोटेंशियल को खींच के थ्रेशोल्ड तक ले जाए, क्योंकि थ्रेशोल्ड पे जैसे ही पहुंचेगा एल टाइप कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे और वहां से वो डिपोलराइजेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए टी टाइप कैल्शियम चैनल का मेन काम होता है कि उसको थ्रेशोल्ड तक वो पहुंचा दे, मतलब थ्रेशोल्ड तक उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पहुंचा दे। ठीक है, ओके। तो उसका टी टाइप कैल्शियम चैनल। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो जो हमारा फेज 1 और फेज 2 होता है, फेज 1 इज ड्यू टू फनी करंट्स दैट इज ड्यू टू सोडियम चैनल्स एंड द फेज 2 इज ड्यू टू टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। ये समझ में आ गया। तो अब चारों फेज के मेन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या आते हैं। जैसे फेज 1 है दैट इज हाइपरपोलराइजेशन इज ड्यू टू फनी करंट्स। सिर्फ फनी करंट नहीं होता, 2 चीज और होता है। क्या होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड पोटेशियम चैनल्स भी होते हैं। तो किसी किसी बुक्स में ये लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस पेसमेकर पोटेंशियल इज इनवर्ड एंड आउटवर्ड पोटेशियम चैनल्स, किसी में लिखा है फनी करंट दैट इज ड्यू टू सोडियम चैनल। ओके, तो टोटल ये 1 एंड 2 जो है, 2 तो हमको समझ में आ गया दैट इज ड्यू टू टी टाइप कैल्शियम चैनल, 1 तो समझ में आ गया दैट इज ड्यू टू सोडियम चैनल, इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल्स ऑल्सो, और 3 इज ड्यू टू एल टाइप कैल्शियम चैनल एंड 4 इज ड्यू टू पोटेशियम चैनल। ठीक है, आउटवर्ड रेक्टिफाइंग पोटेशियम चैनल्स। तो ये इन टोटल हमारा हो गया ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ। ठीक है, अब ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल का, तो इस ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज नोन एज पेसमेकर पोटेंशियल। और ये जो स्लोप होता है, दिस स्लोप इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कैसे किससे लिए डिपेंड करता है, दिस पेसमेकर पोटेंशियल इज डिपेंडेंट अपॉन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब कैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर ये डिपेंडेंट होता है कि अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए तब क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज करेगा। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए तो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो पेसमेकर पोटेंशियल इज डिपेंडेंट अपॉन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल। अब हम जानेंगे व्हाट नाउ विल स्टडी अबाउट। हाँ, तो पेसमेकर पोटेंशियल जो होता है, तो पेसमेकर पोटेंशियल का
आपको समझ में आ गया पेसमेकर पोटेंशियल। तो पेसमेकर पोटेंशियल का एक और चीज आपको क्या याद रखना है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ पेसमेकर पोटेंशियल। एक तो मैंने बताया फनी करंट, ओके, फनी करंट दैट इज ड्यू टू सोडियम चैनल। दूसरा क्या होगा, ट्रांजिएंट टी टाइप कैल्शियम चैनल्स। तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा ट्रांजिएंट आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम चैनल्स एंड इनवर्ड रेक्टिफाइंग सेम पोटेशियम चैनल्स। तो मैंने ये बता दिया था आपको कि पोटेशियम चैनल आउटवर्ड इनवर्ड बोथ, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स एंड द फनी करंट दैट इज ड्यू टू सोडियम चैनल्स, ये सारे मिला के पेसमेकर पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, फनी करंट बता चुका हूँ कि अगर क्वेश्चन आया फनी करंट इज ड्यू टू सोडियम चैनल, फनी करंट इज ड्यू टू सोडियम चैनल। सोडियम चैनल में भी कौन सा मैंने बताया था, किस टाइप के चैनल्स होते हैं, ये होते हैं HCN। अब आप पूछेंगे व्हाट इज HCN। HCN मतलब हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड, हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल्स। लिख लो, हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल्स। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, क्या ये चैनल्स या फिर क्या इस टाइप के चैनल्स सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं? नहीं, ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये कई और जगह पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो भी लिख लो। दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रॉड्स, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कोन्स एंड दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, सो दीज HCN type of sodium channels are also present in rods, cones and olfactory epithelium, and these are also present in the heart and where in the right atrium. ठीक है, so ये जो HCN type of channel होते हैं या फिर जो सोडियम चैनल्स होते हैं, these are mainly for funny currents। ठीक है, इसको फनी करंट क्यों कहा जाता है? देखो, इसको फनी करंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है वो हरदम सोडियम क्या कराता है, पॉजिटिविटी की ओर जाता है, दैट इज टुवर्ड्स डिपोलराइजेशन। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ऐसे नोड बहुत यूनिक है, बहुत स्पेसिफिक है, उसके एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में ये आई करंट या फिर जो फनी करंट है, इसका मेनली काम है हाइपर पोलराइजेशन। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हमारी बॉडी में हो रहा है जहां पर सोडियम जो है ये हाइपर पोलराइजेशन करा रहा है। ठीक है, जो डिपोलराइजेशन नहीं करा रहा है, इसलिए उसको फनी करंट कहते हैं। जो अपना काम ढंग से ना करे लोग उस पर हंसते ही हैं, तो इसीलिए उसको फनी करंट कहा जाता है। ओके, जोक्स अपार्ट, तो ये और कहाँ पर देखा जाता है, रॉड्स में, कॉन्स में और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। उसके बाद इवाब्रेडिन क्या है, देखो इवाब्रेडिन को मैंने यहाँ स्पेशल मेंशन क्यों किया है, इसको कैसे याद रखेंगे, वेरी सिंपल। आई जो सिंबल हम यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, करंट के लिए, किसी की। अब करंट मतलब तो ये 240 वोल्ट वाला, मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात तो कर नहीं रहे, कौन सा करंट की बात कर रहे हैं, एक ही करंट अभी तक मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक मेंशन किया है, कौन सा, फनी करंट। ओके, फनी करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर देखो क्या है, ब्रेड मतलब क्या है, ये कराएगा ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मतलब सिर्फ अगर वर्ड को ढंग से देखो ना, उसको तोड़ के ना उसका पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो ब्रेड मतलब ब्रेडिकार्डिया। अब है आईएन का क्या मतलब है, इनहिबिटर। ठीक है, अब इस पजल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फनी करंट इनहिबिटर कॉजिंग ब्रेडिकार्डिया, द ड्रग नेम ऑफ द ड्रग इज इवाब्रेडिन। सिंपल। तो एक ब्रेडी काइनेटिक एजेंट है जिसका नाम है इवाब्रेडिन, जो कि कराता ब्रेडिकार्डिया है। मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इनहिबिट्स द फनी करंट। इनहिबिट्स फनी करंट का मतलब क्या है, कौन से चैनल को इनहिबिट करेगा। देखो, क्वेश्चन को तो कैसे भी तोड़ मरोड़ के एग्जामिनर पूछ सकता है, हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे, तो अब ये कौन से चैनल को इनहिबिट करेगा, क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है। फनी करंट इनहिबिटर है, ये सबने रट लिया, एक साल उसने पूछ लिया कि ये कौन से चैनल को इनहिबिट करता है, ये सोडियम चैनल को इनहिबिट करता है। सोडियम चैनल मतलब फनी करंट में जो सोडियम चैनल होता है किस टाइप का चैनल होता है, ये भी पूछ सकते हैं। HCN दैट इज हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल्स। समझ गए यहाँ तक? ओके, थैंक यू गाइज। एक्चुअली ये मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट था, सो दैट आई कैन एजुकेट माई कलीग्स, माई जूनियर्स एंड whosoever is benefited by this video, I will be very helpful। एंड मेनली ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा एक ही है। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा जानता हूँ, दैट इज़ नेवर द ट्रू, बिकॉज हम जिस प्रोफेशन में है, एज ए डॉक्टर, एज एन इंटर्न, एज एन मेडिको, मतलब इस हायरार्की में हम कहीं पर भी स्टैंड करते हैं, वी आर ऑलवेज till the death जिस प्रोफेशन में मैं आया हूँ, दिस इज ऑलवेज ए लर्निंग प्लेटफॉर्म, इज ए लर्निंग प्रोसेस। ईच एंड एवरी डे ऑफ माई लाइफ, whenever I'm going to hospital, whenever I'm studying, whenever I'm treating patients, whenever I'm writing a prescription, whenever I'm taking a history, anything I'm doing in my field is just to gain some amount of experience, and I'm learning by all my experience। तो each day by day हम अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस में है। तो इसीलिए जितना मुझे आता था, मतलब जितना मैंने समझा और उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो एनी ऑफ द सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको कुछ डाउट्स है, दैट आर मोस्ट वेलकम। एंड कुछ
अदर सजेशन है, कुछ एड ऑन है, वो भी आप मेरे को बता सकते हैं. दैट इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम. आई विल नेवर फील ऑफेंडेड. सो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगर आपको किसी दूसरे सेपरेट टॉपिक के बारे में जानना है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं. मैं जितना हो जल्दी हो सके उसके बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा. एंड प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को आप दबा दें ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए. थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल मेडिकोस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब DOC.